नमस्ते बच्चों, लीप फॉरवर्ड की ओर से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सैटरडे स्टोरी सेशन में। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा पिछला सत्र जरूर देखा होगा और आपको वो पसंद भी आया होगा। हमेशा की तरह आज भी हम कुछ नया और मजेदार लेकर आए हैं। आज फिर एक बार हम मिलने वाले हैं अपनी दोस्त रिंकी से। आज रिंकी को एक नए राज्य के बारे में जानकारी मिलने वाली है। अरे लेकिन वो राज्य कौन सा होगा भला? तो चलिए उस राज्य के बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। टीचर, ये किला कितना ऊंचा है? क्या यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे? हाँ रिंकी, यही है रायगढ़, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी। यहीं से उन्होंने अपने राज्य का संचालन किया था। इतना बड़ा किला, क्या उन्होंने अकेले ही इसे बनवाया था? नहीं रिंकी, ये किला कई सालों में बनाया गया था। यहीं पर शिवाजी महाराज सारी युद्ध की योजनाएं बनाते थे। यही उनका राज्याभिषेक भी हुआ था। यहीं से उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना मजबूत किया। टीचर, क्या महाराष्ट्र में और भी ऐसे किले हैं? बहुत सारे किले हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को किलों की भूमि भी कहा जाता है। रायगढ़, सिंहगढ़, प्रतापगढ़, हर किला एक कहानी कहता है। और टीचर, महाराष्ट्र कितना सुंदर भी है, बहुत खूबसूरत है। पहाड़ है, नदियाँ है, मंदिर है, सब कुछ है। बिल्कुल, महाराष्ट्र सिर्फ इतिहास नहीं, कला, संस्कृति और विविधता से भी भरपूर है। यहाँ की वर्ली चित्रकला, लावणी नृत्य, गणेश चतुर्थी का उत्सव, सब कुछ इसे खास बनाता है। बढ़िया है मैम। फिर आज आप हमें महाराष्ट्र के बारे में बताएंगी? हाँ, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र, द लैंड ऑफ करेज, कल्चर एंड कोस्टलाइंस। Maharashtra is one of the India's largest and most diverse states, stretching from the Arabian Sea in the west to the green Sahyadri Hills in the east. Its name means great nation, and it truly lives up to it. The state has busy cities, peaceful villages, tall forts, green farms, and beautiful coastlines. Rivers like Godavari, Krishna, and Bhima flow through the land. And forests like Tadoba and Melghat are home to tigers, leopards, deer, and sloth bears. Ancient caves like Ajanta and Ellora are filled with carvings of gods, dancers, and stories from thousands of years ago. Maharashtra's history is full of courage. Chhatrapati Shivaji Maharaj built forts like Raigad, Sinhagad, and created a navy to protect the Konkan coast. The state also gave us freedom fighters and reformers like Tilak, Savitribai Phule, and Dr. Baba Saheb Ambedkar, who helped write India's constitution. Today, Mumbai is India's financial capital and home to Bollywood. Pune is a cultural hub of theatres, universities, and music. Nagpur is famous for its oranges and sits at the India's center. Nashik is known for temples and vineyards and hosts the Kumbh Mela every 12 years. The culture of Maharashtra is colorful and artistic. Dances like Lavani and Tamasha and paintings like Varli show daily life with rhythm and beauty. People speak Marathi and celebrate festivals with great joy, especially Ganesh Chaturthi, Diwali, Gudi Padwa and Makar Sankranti. Maharashtrian food is tasty and diverse, from spicy fish curry on the coast to bhakri and chutney in villages. Every dish is unique. Street foods like vada pav, pav bhaji, misal pav, poha, puran poli and shrikhanda are loved by all. From the lights of Mumbai to the caves of Ellora and the forts of Shivaji Maharaj to classroom of Savitribai Phule, Maharashtra is a land of history, heart and hope, where every hill, temple and street tells a proud story. टीचर, क्या आप अभी ये हमें हिंदी में भी बता सकते हो? हाँ रिंकी, क्यों नहीं, बिल्कुल। ज्ञान तो तभी अच्छा लगता है जब उसे पूरी तरह समझा जाए। चलिए फिर। महाराष्ट्र, द लैंड ऑफ करेज, कल्चर एंड कोस्टलाइंस, यानी कि महाराष्ट्र साहस, संस्कृति और समुद्री किनारों की भूमि। महाराष्ट्र इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स स्टेट्स। महाराष्ट्र भारत के सबसे बड़े और जीवंत राज्यों में से एक है। Stretching from the Arabian Sea in the west to the green Sahyadri Hills in the east.
जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में हरे भरे सह्याद्री पहाड़ों तक फैला हुआ है। The name means great nation, and it truly lives up to it. The state has busy cities, peaceful villages, tall forts, green farms, and beautiful coastlines. और इस महाराष्ट्र का अर्थ है महान राष्ट्र, और यह सचमुच इस नाम के योग्य है। इस राज्य में व्यस्त शहरें हैं, शांत गांव है, ऊंचे किले हैं, हरे भरे खेत है और सुंदर समुद्र तट है। Rivers like Godavari, Krishna, Bhima flow through the land, and forests like Tadoba, Melghat are home to tigers, leopards, deer, and sloth bears. गोदावरी, कृष्णा और भीमा जैसी नदियां इस भूमि में बहती है और ताड़ोबा और मेलघाट जैसे जंगल बाघों, तेंदुओं, हिरनों और रीछों के घर है। Ancient caves like Ajanta and Ellora are filled with carvings of gods, dancers, and stories from thousands of years ago. अजंता और एलोरा जैसी प्राचीन गुफाएं भगवानों, नर्तकों और हजारों साल पुरानी कहानियों की नक्काशियां से भरी हुई है। Maharashtra's history is full of courage. Chhatrapati Shivaji Maharaj built forts like Raigad and Sinhagad and created a navy to protect the Konkan coast. महाराष्ट्र का इतिहास वीरता से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ और सिंहगढ़ जैसे किले बनवाए और कोंकण तट की रक्षा के लिए एक नौसेना का निर्माण किया। The state also gave us freedom fighters and reformers like Tilak, Savitribai Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar, who helped write India's constitution. इस राज्य ने तिलक, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों को जन्म दिया, जिन्होंने भारत का संविधान बनाने में मदद की। टुडे मुंबई इज इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल एंड होम टू बॉलीवुड। आज मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और बॉलीवुड का घर भी है। पुणे इज अ कल्चरल हब विद थिएटर्स, यूनिवर्सिटीज एंड म्यूजिक। पुणे एक सांस्कृतिक केंद्र है जहां नाटक, विश्वविद्यालय और संगीत का संगम है। नागपुर इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस एंड सिट्स एट इंडिया सेंटर। नागपुर अपने संतरों के लिए प्रसिद्ध है और ये भारत के मध्य में स्थित है। नाशिक इज नोन फॉर टेम्पल्स एंड वाइनयार्ड्स एंड होस्ट द कुंभ मेला एवरी 12 years। नाशिक अपने मंदिरों और अंगूरों के बागों के लिए जाना जाता है और हर 12 साल में कुंभ मेला यहाँ पे आयोजित किया जाता है। The culture of Maharashtra is colorful and artistic. Dance like Lavani and Tamasha and paintings like Varli show daily life with rhythm and beauty. महाराष्ट्र की संस्कृति रंग बिरंगी और कलात्मक है। लावणी और तमाशा जैसे नृत्य तथा वारली जैसी चित्रकला दैनिक जीवन की सुंदरता और लय को दर्शाती है। People speak Marathi and celebrate festivals with great joy, especially गणेश चतुर्थी, दिवाली, गुड़ी पाड़वा एंड मकर संक्रांति। लोग मराठी भाषा बोलते हैं और त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते हैं, खासकर गणेश चतुर्थी, दिवाली, गुड़ी पाड़वा और मकर संक्रांति। महाराष्ट्रियन फूड इज टेस्टी एंड डाइवर्स। महाराष्ट्र का भोजन स्वादिष्ट और विविधतापूर्ण है। From spicy fish curry on the coast to bhakri and chutney in villages, every dish is unique. समुद्र तट पर तीखी मछली की करी से लेकर गांवों की भाकरी और चटनी तक हर व्यंजन अलग और खास है। स्ट्रीट फूड्स लाइक वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव, पोहा, पुरनपोली एंड श्रीखंड आर लव्ड बाय ऑल। वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव, पोहा, पुरनपोली और श्रीखंड जैसे स्ट्रीट फूड सबके पसंदीदा है। From the lights of Mumbai to the caves of Ellora and the forts of Shivaji Maharaj to classroom of Savitribai, Maharashtra is a land of history, heart and hope, where every hill, temple and street tells a proud story. मुंबई की रोशनी से लेकर एलोरा की गुफाओं तक, शिवाजी महाराज के किलों से लेकर सावित्रीबाई की पाठशालाओं तक, महाराष्ट्र इतिहास, भावना और आशा की भूमि है, जहां हर पहाड़ी, मंदिर और गली एक गर्वित कहानी कहती है। बच्चों, अब जब हमने महाराष्ट्र की कहानी सुन ली है, तो चलो जरा उन शब्दों को भी देखें जो शायद सुनने में थोड़े आपको नए या फिर कठिन लगे हो। पहला शब्द है कोस्ट लाइन, COASTLINE, कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र तट की रेखा। अगला शब्द है फॉरेस्ट, FORESTS, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। अगला शब्द है कार्विंग्स, CARVINGS यानी कि नक्काशी, उकेरी गई आकृतियां। अगला शब्द है रिफॉर्मर,
REFORMERS, रिफॉर्मर्स यानी कि समाज सुधारक। अगला शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। अगला शब्द है कल्चरल हब, CULTURALHUB, कल्चरल हब यानी कि सांस्कृतिक केंद्र। अगला शब्द है वाइन यार्ड, VINEYARDS, वाइन यार्ड्स यानी कि अंगूर के बाग। अगला शब्द है आर्टिस्टिक, ARTISTIC, यानी कि कलात्मक, कला से भरपूर। बच्चों चलिए अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। अभी आपको यहाँ पे सही शब्द चुनना है। आपको नीचे कुछ विकल्प दिए होंगे, उन विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्या क्या विकल्प है एक बार देख लेते हैं। हमारे विकल्प है फोर्ट्स, केव्स, मुंबई, लावनी, गोदावरी, कोंकण कोस्ट, ऑरेंजेस एंड मराठी। पहला है रिवर्स लाइक द डैश, कृष्णा एंड भीमा फ्लो थ्रू द लैंड। और इसका सही जवाब है जी हाँ, गोदावरी। नेक्स्ट, एंशिएंट डैश लाइक अजंता एंड एलोरा आर फिल्ड विद कार्विंग्स ऑफ गॉड्स, डांसर्स एंड स्टोरीज। And the right answer is very good, caves. Third is Chhatrapati Shivaji Maharaj built forts like Raigad and Sinhagad and created a navy to protect the dash. And the answer is Konkan coast. Next, the state has busy cities, peaceful villages and tall dash, green farms and beautiful coastlines. And the answer is forts. Next, dash is India's financial capital and home to Bollywood. And the answer is Mumbai. Next is people speak dash and celebrate festivals with great joy. And the answer is Marathi. Next, dances like dash and tamasha show daily life with rhythm and beauty. And the answer is Lavani. Next, Nagpur is famous for its dash and sits at India's center. And the right answer is very good, oranges. बच्चों, रिंकी को तो ये कहानी बहुत पसंद आई। क्या आपको पसंद आई? आज हमने जाना कि महाराष्ट्र सिर्फ नक्शे में नहीं बल्कि अपने किलों, कला, इतिहास, लोक नृत्य और विविधता से भारत की शान है। हर शनिवार हम ऐसे ही सच्ची और जानने लायक कहानियों को लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले सैटरडे स्टोरी सेशन में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और सीखते रहिए और देखते रहिए आपका पसंदीदा सैटरडे स्टोरी सेशन।